السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ آشا کرتے ہو آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں ایک وظیفے کے بارے میں جو آپ لوگ بہت ہی پاورفل ہے اور آپ لوگوں کو کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا موقع نہیں دے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس وظیفے کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو ارجنٹ پیسے کی ضرورت ہو جاتی ہے تو اس قرآنی مرتبہ کو آپ 7 بار پڑھ لیں۔ کسی سے بھی کسی سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب بھی آپ لوگوں کو پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو 7 مرتبہ اس سورہ کو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ صبح پڑھیں گے تو شام کو کام آئے گا، اور اگر شام کو پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو شام کو پڑھیں گے تو آپ کو پیسے کی جو انتظام ہے وہ صبح آ جائے گی انشاءاللہ۔ کیسے ہوگا اس کی تعریف میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ اس عمل کے بعد کسی سے پیسہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے پاس خود پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ آپ کو پیسے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ عمل اتنی پاورفل ہے کہ آپ جیسے ہی پڑھو گے ہاتھ لگ جاتی ہے پیسے کی خزانہ آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جو انسان اس وظیفے کو پڑھ لے گا نا، اس انسان کے رزق کی تلا کھل جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل جتنی بار بھی کریں گے اتنی بار آپ کو پیسہ ملتے رہیں گے۔ اگر آپ کو سچ میں پیسے کی ضرورت ہے تو اس عمل کو کرنے کے لیے وضو کر کے صاف نیت لے کے بیٹھ جائیں۔ اس کی ترکیب میں بالکل آسان طریقے سے بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں کے گھر میں چاول کے دانے چاول آپ لوگ کھاتے ہوں گے، تو اس چاول کے کچے 7 دانے لے لیجئے۔ اگر چاول نہیں ہے تو مونگ کے 7 دانے لے لیجئے، مونگ دال آتی ہے اس کے۔ پھر 2 کاغذ لے لیجئے، سفید کاغذ۔ اب آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، تہوس اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ سمے میں ایک پابندی نہیں ہے، آپ کبھی بھی کوئی بھی جب بھی آپ کا من کرے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے تب آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ کچھ دنوں میں اس کی روحانیت آپ کو ملنا چالو ہو جائے گی۔ آپ کا مقصد چاہے جتنا بڑا ہو، اس وظیفے کو پڑھ لے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کی مقصد آپ سے بڑا ہے۔ اس عمل پہ آپ کو توکل کر لینا ہے۔ آپ صاف نیت اور صاف دل سے اگر توکل کریں گے تو اور اللہ آپ پاک کے اوپر نشٹا، بھروسہ اور یقین رکھیں گے تو آپ کا مقصد پورا ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ جو چاہے ملے گا، آپ کو جو چاہیے ہوگا، کچھ بھی چاہیے، آپ اس وظیفہ کو پڑھ کے آپ اس کو دعا میں مانگ لیجیے، آپ کو ملے گا ہی ملے گا۔ اس عمل کو آپ کو کرنا کیسے ہے، کیا طریقہ ہے، یہ سارا میں آپ کو بتاؤں گی آسان طریقے سے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہو اور سوچتے ہو کہ عمل کرنے کا وظیفہ سمجھ میں آ جائے پھر ہم کر لیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، طریقہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ۔ اس کے لیے آپ کو نیت کا اور عادت کا ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو ایسا سوچیں گے کہ آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ کی ضرورت ہے تو ہم لوگ اس وظیفے کو بار بار پڑھیں گے، لیکن نہیں، اس وظیفے کو صرف اور صرف برے وقت میں ہی پڑھنا ہے، جب آپ کے سامنے کوئی راستہ نہ ہو، کہ آپ کو بہت ہی برا وقت آ گیا ہے، کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، تب آپ کو یہ درود پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ شاید کبھی نہ کبھی تو کیا ہی ہوگا۔ تو چاول کے دانے کو صاف لینا ہے، ٹوٹا ہوا نہیں لینا ہے۔ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، جو نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی پڑھنا ہے، اور ساتھ میں توس اور تسمیہ کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ کو شروع کرنا ہے پڑھ کے۔
सूरातुल मर्तबा पढ़ना है, उसे वही आसान सूरा मुबारका है जो आपको पढ़ना है। अगर मैं पढ़ूंगी शायद आपको लगेगा कि आपने पढ़ा है, लेकिन इसकी एक खास मर्तबा है जिसके कारण आपको तमाम कामों में आसानी मिलती है। इसके कायदे इसके कदम कदम में अल्लाह की मदद शामिल है। तमाम मुश्किलें आसान हो जाती है। इससे आपके रिज़्क की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका माल और असबाब में बरकत पैदा हो जाएगी। ईमान ही नसीब होती है। इस दुरूद पाक की बड़ी फायदे होती है। जो दुरूद पाक हमें नमाज में हम नमाज में पढ़ते हैं, 7 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आप लोग नमाज के अंदर पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये आपको पढ़ लेना है। आपको चावल के दानों के ऊपर सूरतुल इखलास इसको पढ़ना है। इस सूरा की एक खास फजीलत है जो हदीस के पाक में बहुत ज्यादा फजीलत आई है। और चावल के दाने के ऊपर कैसे पढ़ना है सुनिए। 2 कागज लेने हैं, दोनों कागज सामने रखना है। एक आपके लिए एक आपने लिया है, रख लिए, जिसमें चावल के 7 दाने को रखना है और एक खाली रखना है। एक दाना उठाना है और उस दाने के ऊपर 7 मरतबा सूरा इखलास पढ़ना है और फिर उसमें फूंक मार के दूसरे कागज पे रख देना है। ऐसे ही दूसरा चावल उठाना है, फिर उसमें सूरा इखलास पढ़ के फूंक मारना है, फिर उसके बाद दूसरे कागज पे रख देना है। ऐसे ही तीसरे को लेके सूरा इखलास पढ़ के फिर उसको दूसरे कागज में रख देना है। ऐसे ही करके 7 दानों को लेके 7 मरतबा सूरा इखलास पढ़ के दूसरे कागज में रख देना है। कागज साफ लेना है, आप न्यूज पेपर ले लीजिए या तो फिर यूज किया हुआ पेपर ले लीजिए, बट उस पेपर में कोई भी तस्वीर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी तस्वीर या तो पिक्चर रहेगा जिस वजह से आपका ये जो अमल है, आपका ये जो वजीफा है, वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे इस्लाम में कोई भी फोटो वगैरह किसी भी चीज में नहीं चलता, चाहे वो कपड़ा हो या तो फिर घर में वॉल पेंटिंग हो या तो फिर घर पे आप पिक्चर ऐसा फोटो फ्रेम लगाओ। ऐसा कुछ भी हमारे घर इस्लामिक बंदों के घर पे ऐसा रखना नहीं है। इससे हमारा जो क्या बोलते हैं, अच्छी नीयत फरिश्ता लोग ना घर पे नहीं आ सकते इसकी वजह से। तो आप लोगों को क्या करना है, बिस्मिल्लाह के साथ इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको ये बोलना है कि अल्लाह, इसमें मुबारक है, ये बड़ा कमाल है और ये दौलत के हवाले में, इज्जत के हवाले में, शोहरत के हवाले में, तमाम हजार के हवाले से बड़ा बेहतरीन है। बड़ा बेहतरीन अमल कहलाता है। अल्लाह फरिश्ते के जरिए बंदों को मदद करते हैं। ये तो हम सबको पता है कि अल्लाह फरिश्ते के जरिए से हम सबको मदद करते हैं, हम सबकी जो मुश्किलात है उनको दूर करते हैं। और इसके साथ आप लोगों को एक अज़म भी चावल के दाने के ऊपर पड़ना है। अभी बताती हूँ कि ये दाना ये कैसे अच्छी तरीके से रखना है, पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, या जलजलानी इकरम अज़म, इसको 313 मरतबा पढ़ना है और चावल के दानों के ऊपर फूंक मारना है। इसके बाद आपको या गनीयू 100 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद फिर से दुरूद पाक पढ़ लेना है। वजीफा हो गया है। इसको जो चावल को आप कागज में लपेट के अपने पर्स में रख लीजिए, आप अलमीरे में रख लीजिए। कि आप पैसे जहां भी रखते हो, चाहे वो तिजोरी हो, अलमीरा हो, पर्स हो, कहीं भी हो, वहां पे आप ये चावल के दाने को रख लीजिए। आप ये चावल के दाने को जब तक अपने पास रखोगे तो आपके पास रिज्क की बरसात होती रहेगी। आप जो चाहेंगे आपको वो मिलता रहेगा। इस वजीफे को आप अगर हफ्ते में 5 से 6 बार करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। ये जो वजीफा बोला मैंने आपको, आप ये चावल के ऊपर भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप दूध के ऊपर भी कर सकते हैं। दूध हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है पीने में, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है।
तो आप इसको दूध के ऊपर फूंक मार के, मतलब दूध को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद उसको पी लीजिए, तो आपका हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। अब दूध है, उसके अलावा आप पानी के साथ भी ये कर सकते हो, पानी में भी दूध को पढ़ना है, फिर उसके बाद आप उसको पी लीजिए, तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब दुआ अच्छे तरीके से करना है आपको, मतलब जल्दी जल्दी नहीं करना है। जितना अमल करने में टाइम लगेगा उससे ज्यादा टाइम आपको दुआ मांगने में है। मतलब ये बोलना है, या रब्बुल आलमीन मुझे नमाज पढ़ने की तौहीद दे, या रब्बुल आलमीन मुझे कुरान पढ़ने की हिदायत दे, या रब्बुल आलमीन मेरे मुश्किलात दूर कर दीजिए, या रब्बुल आलमीन मेरे लाइफ के मेरे माफ़ी कर दीजिए मेरे हर गलत कामों का, या रब्बुल आलमीन मुझे जहन्नम के आगों से बचा लीजिए। तो आप इस अमल को भी 6 से 7 बार कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आप इस अमल को 6 से 7 बार दूध या तो पानी में, दोनों में से किसी में भी आप कर सकते हो। और फर्ज की नमाज के बाद करेंगे तो और भी अच्छा होगा। और अमल करने के पहले अस्तगफर करना ही है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगी, बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और दुआ मांगिए कि मैं जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो वैसे सपोर्ट कीजिए। वैसे मैं भी चाहूंगी कि मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूं, जो लोग मेरी तरह छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, मैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहूंगी। तो कमेंट में मुझे बताना, मैं भी आप लोगों को हेल्प करूंगी। और लाइक, सब्सक्राइब, और हो सके तो मेरे चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूं।